Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Update Mathematics. My name is Dr. Atif Suri, and this is a series of videos on National Book Foundation Mathematics Curriculum Class 9. Today, the exercise we are going to solve is exercise 1.2, and this is related with the topic of square roots and radicals and radicands. And the first question of this exercise is, by using the property of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify. इसका मतलब है कि हमने इन रेडिकल्स को जैसे इस क्वेश्चन के अंदर लिखे हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके सिंगल रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेस करना है. पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 6. तो अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं लास्ट वीडियो के मुताबिक, सो दैट इज दी nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ b, ये इक्वल होता है a b प्रोडक्ट के nth रूट के, और इसी तरह nth रूट ऑफ a divided by nth root of b, this is equal to the nth root of a over b. In this question we will follow the first rule, that is the product rule. Here a and b both are 6 and n is equal to 3. So you can see that cube root of 6 multiplied by cube root of 6 can be written as 6 multiplied by 6, and this will be written in the single cube root sign, and that then we will have the cube root of 36. Question number 2 is the fifth root of 4 multiplied by the fifth root of 8. Again it follows the property number product rule property number 1, and that is equal to, जब ये दोनों का रूट जो है वो इंडेक्स सेम है 5, तो हम इनको सेम इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अंदर जो रेडिकेंड्स हैं 4 और 8 वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर होगा 4 8 32 and fifth root. The next one is fourth root of x multiplied by the fourth root of x cube. Again the radicands are multiplied, so x multiplied by x cube, and we will write them in the single fourth root, and the answer will be x और x cube जब multiply होंगे तो यहाँ पर हमने rules of exponents पढ़े हुए हैं कि जब base same होती है तो उनकी powers या exponents add हो जाते हैं. So this becomes 1 plus 3, so ये होगा x power 4 और उसका fourth root. उसके बाद question number 4 है इस exercise का, square root of 10 multiplied by the cube root of 11. तो हमने ये उस प्रॉपर्टी के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जब तक इनका इंडेक्स सेम नहीं होता उस वक्त तक हम इनके रेडिकेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. इसका आंसर होगा कैन नॉट बी कंप्यूटेड. नंबर 5 इज फोर्थ रूट ऑफ x पावर 7 डिवाइडेड बाय द फोर्थ रूट ऑफ x पावर 5. Again when we write them in the single fourth root sign, तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं, दोनों का क्वोशिएंट ले लेते हैं. फोर्थ रूट दिस बिकम्स x पावर 7 ओवर x पावर 5. अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है जो कि हमने पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर, कि अगर बेस सेम हो तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो माइनस कर देते हैं जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं. सो दिस इज इक्वल टू x पावर 7 minus 5 and the fourth root of this one. So this is equal to fourth root of x square. Then we have question number 6, which is the cube root of 5000 divided by the cube root of 5. Again हम इसमें इनको एक क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे, तो ये 5000 over 5 सिंगल क्यूब रूट के अंदर आएगा, and that is equal to the cube root of 1000. Then we have question number 7, which is the square root of 500 divided by the square root of 5. अब यहाँ पे ये देखें कि हमने स्क्वायर रूट जो है उसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो ये अगर 2 हम ना भी लिखें तब भी हमें ये पता है कि ये स्क्वायर रूट का साइन है. तो विदाउट इंडेक्स 2 इट इज ऑब्वियस दैट इट इज स्क्वायर रूट. सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर दिस बिकम्स 500 over 5 and that is equal to the square root of 100 जब हम इनको 500 को 5 से डिवाइड करते हैं. And then the last part of this question is square root of 10 to be multiplied with the cube root of 7. Again this product cannot be computed because the indexes are not same. The indices are 2 and 3 and they are not same, that is why we cannot find this product. The second question of exercise 1.2 states that write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. यानी हमने इनमें ये जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सबको हमने रेडिकल एक्सप्रेशंस के अंदर पहले तो लिखना है, यानी रूट साइन के साथ, और फिर उसके बाद इनको हमने सिंप्लीफाई भी करना है जितना पॉसिबल हो सकता है. The second question
of this exercise part 1 is 216 whole raised to the power 2 by 3. तो पहले तो हमने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 216 स्क्वायर एंड दिस इज द होल क्यूब रूट. जो 1 by 3 है वो रूट साइन के साथ जाएगा, इंडेक्स के साथ जाएगा, और जो इंटीजर पावर है वो इसके पावर में आ जाएगी. तो 216 स्क्वायर का क्यूब रूट. देन इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है. तो अब आपने ये देखना है कि 216 जो है वो इस 3 को खत्म करने के लिए ये किस नंबर का क्यूब है. तो बेसिकली आप कैलकुलेटर पे अगर देखें तो ये 6 का क्यूब है. तो वी कैन राइट 216 एज 6 क्यूब एंड वी हैव होल रेज टू द पावर 2 by 3. नाउ वी हैव स्टडीड द रूल कि पावर की पावर अगर हो तो फिर एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो 6 दिस बिकम्स रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 by 3. और उसके बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 3 कैंसिल होता है, so this becomes 6 square and the answer is 36. The second part of this question is square root, this is 29 power 1 by 2, and the answer is in radical form. The answer is square root of 29. This question cannot be further simplified because 29 is not square of any number, so that is the answer in more simplified form. Then we have part 3, which is 1 over 32 whole raised to the power 1 by 5. So this is equal to 1 by 32 and its fifth root, because 1 by 5 is the fifth root. Now to simplify this radical form, we will write 32 as power 5 of some number. हम ये ढूंढेंगे कि 32 किस नंबर की पावर 5 है. So अगर आप चेक करना शुरू करें 2, 3, 4, 5 स्मॉलर नंबर से, तो वी विल फाइंड आउट के 2 पावर 5 जो होता है वो 32 होता है. सो देन वी कैन राइट इट एज 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5, और ये क्योंकि होल 1 पावर 1 by 5 है. अब रेडिकल की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए क्वोशिएंट रूल की प्रॉपर्टीज, ये 1 पावर 1 by 5 हो जाएगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे किया था. इनको अलग-अलग हम लिख लेंगे. सो 2 पावर 5 होल पावर 1 by 5 एंड दिस इज इक्वल टू, अब 1 की पावर कोई भी आप लें 1 ही होता है, डिवाइड बाय, और फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो 5 पावर 1 by 5, 5 multiplied by 1 by 5, that becomes 1. So the answer is 1 over 2. Number 4 question है 216 whole raised to the power minus 2 over 3. ये जिस तरह पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी होगा कि आप 216 whole power minus 2, और इसको लिख सकते हैं रेडिकल साइन के अंदर क्यूब रूट, बिकॉज ये 1 by 3 है, सो ये इंडेक्स बन जाएगा. और फिर उसी तरह आप ये देखेंगे कि 216 जो है वो किस नंबर की पावर 3 है. सो दैट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये 6 का क्यूब है. सो 6 क्यूब और दिस इज इक्वल टू माइनस 2 by 3. और उसी तरह जब एक्सपोनेंट्स की एक और एक्सपोनेंट हो उसके ऊपर, तो फिर एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 by 3, 3 को कैंसिल कर दें, तो दिस बिकम्स 6 पावर माइनस 2. और वो जो रूल ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े थे कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं. सो दिस बिकम्स 1 over 6 स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर विल बी 1 by 36. Then part 5 is 1000 power 1 over 3. 1000 power 1 by 3 को हम रूट साइन के अंदर लिख सकते हैं द क्यूब रूट ऑफ 1000. और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम अगेन ये देखेंगे कि 1000 जो है वो किस नंबर का जो है वो क्यूब है. सो इट इज बेसिकली 10 क्यूब. वी नो दैट 10 पावर 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1000. और हम क्योंकि 1 by 3 पावर फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसके बाद जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, सो दिस बिकम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3 एंड दैट इज 10 रेज टू द पावर 1 या 10 के इक्वल इसका आंसर होगा. देन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्ट 6, 1 over 39 होल रेज टू द पावर 1 over 2. इसको भी जब हम रूट साइन के अंदर लिखेंगे, सो दैट इज 1 over 39 स्क्वायर रूट. अगेन दिस कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बिकॉज 39 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता. सो ये आपका फाइनल आंसर होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर. For the remaining questions of this exercise, please watch the next video. And if you don't understand anything in this part of the video, then please do give me your feedback and write your question in the comment box. And please do subscribe and like, share my channel Update Mathematics.